Hello public, trigonometry continue. If alpha and beta lies between 0 to pi by 2 मतलब first quadrant कोई problem नहीं है. All trigonometric ratios are positive. Cos alpha plus beta is given. Sin alpha minus beta is given. We want to find what? Sin 2 alpha. ठीक है भाई. अब sin 2 alpha को क्या लिख सकते हो? Sin 2 alpha can be written as what? Sin of alpha plus alpha. This can be written as sine of alpha plus beta plus alpha minus beta, adding and subtracting beta. Now what is sine of a plus b? Sine of a plus b is equal to sine a cos b minus, sorry, plus cos a sine b. Sin cos sin with the same sign. किसका किसका वैल्यूज दिया है उन्होंने दिया है साइन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज हाउ मच साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये दोनों का वैल्यूज दिया है उन्होंने. ये आपको वैल्यूज फाइंड करना है. यू कैन फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग व्हाट? ट्रायंगल मेथड. if you consider किया अल्फा प्लस बीटा, what is given? cos अल्फा प्लस बीटा मतलब this is 12, this is 13, so this will become how much? 5. Similarly, if you consider this angle as alpha minus beta, क्या दिया है? sin of alpha minus beta is 3 upon 5, opposite upon hypotenuse, तो adjacent कितना हो गया? 4. Therefore, from this triangle, how much will be sine of alpha plus beta? This will become 5 upon 13, and cos of alpha minus beta, this will become how much? 4 upon 5. सब values पता है, substitute कीजिए. How much will be sine to alpha? Sine of alpha plus beta means 5 upon 13 into 4 upon 5 plus cos of alpha plus beta कितना है? 12 upon 13 into 3 upon 5. So 12 3 जा हो गया 36, 5 4 जा हो गया 20, 36 plus 20 will be 56 upon 65. टिंग टिंग टिटिंग. झेपा क्या? Next problem please. If tan square theta is equal to 2 tan square phi plus 1, then find cos 2 theta plus sin square phi. ओके. नाउ क्या दिया है उन्होंने? tan स्क्वायर थीटा दिया है. फाइंड cos 2 थीटा है. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, व्हाट इज द फॉर्मूला? cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर phi. बट हाउ मच इज tan स्क्वायर थीटा? tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan स्क्वायर थीटा plus 1. How much is tan square theta? Tan square theta is 2 tan square theta, 2 tan square phi plus 1 plus sin square phi. ऊपर ओपन करेंगे 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल, आपको मिलेगा माइनस 2 tan square phi. नीचे ओपन करेंगे 1 प्लस 1 विल बिकम हाउ मच? 2. ये कितना है? 1 प्लस, this is tan square phi. 1 plus 1 will become 2. 2 common. This will become 1 plus tan square phi. How much is 1 plus tan square phi? 1 plus tan square phi is sec square phi. Tan square phi को आप लिख सकते हो sin square phi upon cos square phi. 1 plus tan square phi is sec square phi, which is 1 upon cos square phi plus sin square phi. इसका हो गया हैप्पी बर्थडे. माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0. टिंग टिंग टिटिंग. चिंदी प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. If alpha and beta are acute angle मतलब क्या है? Less than 90 मतलब both are in first quadrant, and cos 2 alpha, this is equal to 3 cos 2 beta minus 1 whole upon 3 minus cos 2 beta, then find tan alpha.
tan अल्फा आपको फाइंड करना है, ये है cos 2 अल्फा। अगर आपको याद है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, then you can write b minus a upon b plus a. This is equal to how much? D minus c upon d plus c. Correct? दिस इज व्हाट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नीचे का माइनस ऊपर का अपॉन नीचे का प्लस ऊपर का, अपॉन नीचे का माइनस ऊपर का अपॉन नीचे का प्लस ऊपर का। वी विल यूज दिस। यहाँ पे नीचे कितना है 1, तो दिस विल बिकम 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा, नीचे का माइनस ऊपर का, 3 माइनस cos 2 बीटा माइनस 3 cos 2 बीटा प्लस 1 होल अपॉन 3 cos 2 बीटा माइनस 1 प्लस 3 माइनस cos 2 बीटा। अरे भैया सिर्फ ऐड ही करना था नीचे का, ये पहला लिखा वो बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 माइनस cos 2 बीटा, टिम्बर टिम्बर टिम्बर। तो अभी कितना हो जाएगा आपका ये 1 माइनस cos 2 अल्फा। व्हाट इज 1 माइनस cos 2 अल्फा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस cos 2 अल्फा विल बिकम हाउ मच? 2 cos स्क्वायर अल्फा। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 cos 2 बीटा होल अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 cos 2 बीटा। करेक्ट? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 और 3 cos 2 बीटा ये हो जाएगा प्लस। ऊपर से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, दिस विल बिकम 1 माइनस cos 2 बीटा। नीचे से क्या कॉमन है? 2, दिस विल बिकम 1 प्लस cos 2 बीटा। हाउ मच इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर? दिस विल बिकम tan स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अगेन 1 माइनस cos 2 बीटा इज 2 साइन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस cos 2 बीटा इज 2 cos square beta. 2 will get cancelled. Sin square upon cos square will be tan square. So tan square alpha is equal to 2 tan square beta. Alpha and beta are acute angle, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो आपका tan अल्फा कितना हो जाएगा? √2 इंटू tan बीटा। टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the value of cos 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x plus 10 whole upon cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x। बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फॉर्मूले सब यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यू कैन राइट दिस एज व्हाट? cos 6x प्लस cos 4x प्लस 5 cos 4x। 6 को मैंने क्या लिखा है? 1 प्लस 5। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस 10। 5 cos 2x प्लस 10 cos 2x प्लस 10 होल अपॉन सेम डिनोमिनेटर। I can write this as cos 6x plus cos 4x, बीच में के दोनों टर्म से 5 कॉमन, cos 4x plus cos 2x, 10 कॉमन, 1 plus cos 2x, okay, 1 plus cos 2x whole upon denominator. Now you will use the formula cos c plus cos d. What is cos c plus cos d? 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 and 1 plus cos 2 theta. This is how much? 2 cos square theta. ये अप्लाई करेंगे. What will be cos 6x plus cos 4x? It will be 2 cos 6x plus 4x is 10x upon 2 5x into cos x plus 5 into 2 cos 3x into cos x plus 10 into 1 plus cos 2x is 2 cos square x whole upon denominator. What is common? Common क्या है? 2 cos x is common. If you take 2 cos x common, this will become cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x
और आपका नीचे कितना दिया है, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। तो इन दोनों का क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे, दिस इज इक्वल टू 2 cos x। देखना डिनोमिनेटर में क्या दिया है, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, चिंदी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इफ sin x plus sin square x, this is given to be 1, find cos raised to 12x plus 3 cos raised to 10x plus 3 cos raised to 8x plus cos raised to 6x cos raised to 6x minus 1. Now what is given? It is given sin square x plus sin square x is equal to 1. Sin square x को इधर ले लिया तो 1 minus sin square x, 1 minus sin square x is how much, cos square x. तो sin x is equal to how much, cos square x. From first 4 terms we can take common. क्या कॉमन लेते हैं हम लोग, cos रेस टू 6x कॉमन लेते हैं। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, cos रेस टू 6x प्लस 3 cos रेस टू 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1 दिख रहा है अगर आपको, तो दिस विल बिकम cos रेस टू 6x, दिस इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस b द होल क्यूब माइनस 1। ये 6x को भी आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x द होल क्यूब, लेकिन cos स्क्वायर x कितना है, sin x, तो दिस विल बिकम sin x द होल क्यूब, और ये cos स्क्वायर x कितना है, दिस विल बिकम sin x प्लस 1 द होल क्यूब माइनस 1। a क्यूब इंटू b क्यूब कैन बी रिटर्न एज a इंटू b द होल क्यूब माइनस 1। इसको ओपन किया तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स द होल क्यूब माइनस 1। बट हाउ मच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन चिंदी प्रॉब्लम, आंसर लक्षात ठेवा। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज, find the value of sin pi by 18, sin 5 pi by 18, sin 7 pi by 18। एक तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कॉस में अगर इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस में अगर आपको चेंज करना है, जब भी आपको चेंज करने का रहेगा एंगल, तो फर्स्ट एंगल 90 चाहिए, इधर 18 है तो इसको लिखेंगे 9 पाई माइनस हाउ मच पाई इज पाई, 8 पाई। पहले भी किया था भैया, चेंज करना है, चेंज करना है तो नीचे कितना है 18, ऊपर कितना लिखने का 9 पाए, 9 पाए माइनस हाउ मच पाए इज 5 पाए, 4 पाए, और ये कितना है 7 पाए, तो नीचे 18 है, यहाँ कितना आ जाएगा 9 पाए, 9 पाए माइनस हाउ मच पाए इज 7 पाए, 2 पाए। अबे भैया 7 पाई को लिखा 9 पाई माइनस 2 पाई, 5 पाई को लिखा 9 पाई माइनस 4 पाई, पाई को लिखा 9 पाई माइनस 8 पाई। चेंज करना था मुझे साइन को कॉस में, इसलिए ऊपर मैंने आधा लिया, तो दिस विल बिकम, क्योंकि यहाँ आता है पाई बाय 2 माइनस 8 पाई बाय 18, दिस विल बिकम हाउ मच, पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 18, एंड दिस विल बिकम हाउ मच, पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 18। 90 म्हणजे चेंज, साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस 8 पाई बाय 18 म्हणजे 4 पाई बाय 9, this will become how much, 2 pi by 9, 90 means change, sine will change to cos, cos 2 pi by 9, 90 म्हणजे change, it will become cos pi by 9। अभी देखिए ये एंगल डबल होते जा रहा है, पाई 2 पाई 4 पाई, ओके, पाई बाय 9 यानी आपको मालूम है 20, cos 20 cos 40 cos 80, इसका वैल्यू मैंने आपको डायरेक्टली दिया है 1/8।
इसका वैल्यू मैंने डायरेक्टली आपको दिया है 1/8। अगर आपको याद नहीं है, एक मेथड है, सबसे जो छोटा एंगल कितना है, π/9, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट, साइन π/9, तो cos 4π/9, cos 2π/9, cos π/9, सबसे छोटा एंगल π/9 है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट, साइन π/9। झेपा। नाउ अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, हाउ मच इज साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बिकम साइन 2 थीटा अपॉन 2। साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन π/9 कॉस π/9 कितना हो जाएगा, साइन 2π/9 अपॉन 2। वो साइन 2π/9, ये कॉस 2π/9 कितना हो जाएगा, साइन 4π/9 अपॉन 2। वो साइन 4π/9, देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन 2π/9 अपॉन 2, एक 2 नीचे आ गया। ये साइन 2π/9 कॉस 2π/9 कितना हो जाएगा, साइन 4π/9 अपॉन 2। और ये साइन 4π/9 कॉस 4π/9 कितना हो जाएगा, साइन 8π/9 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन 8π/9 अपॉन, 3 बार फॉर्मूला यूज किया है तो 3 2 आएंगे इंटू साइन π/9। 8π/9 को आप क्या लिख सकते हो, π-π/9, चेंज नहीं करना था ढक्कन, होल अपॉन 8 साइन π/9। 180 means no change, sign will remain sign, this will become sin π/9 upon 8 into sin π/9। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, this will become how much, 1/8। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी मैंने लिख के दिया था, अगर आपको वो याद है तो वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, π/14, 3π/14, 5π/14, 9π/14, 11π/14 एंड 13π/14। टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, साइन π/14, 3π/14, 5π/14, 9π/14, 11π/14, 13π/14। अभी इस पे ध्यान दीजिए। नाउ बघा तुम्ही, हे 3 एंगल्स छोटे आहेत आणि हे मोठे आहेत। तो अभी ये 9π/9 है, अभी इसको देखिए, अभी चेंज नहीं करने का है, तो ये ऊपर आएगा 14π माइनस 5π अपॉन 14, बराबर। 14π माइनस 5π अपॉन 14, इसकी बात कर रहा हूँ। 14π माइनस 5π इज हाउ मच, 9π। हे किती होणार, पाय माइनस 5π/14। 180 मीन्स नो चेंज, तर हे किती होणार, डायरेक्टली लिहू 5π/14। तो दिस विल बिकम हाउ मच, ये तीनों सेम, ये कितना हो जाएगा, साइन 5π/14। ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस हाउ मच इज 11, 3π/14। 14 माइनस हाउ मच इज 13, π/14। झेपा क्या रहे, बहुत बार सिखाया है, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस 5π/14। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/14। और इसको क्या लिख सकते हो अपन, पाई माइनस π/14। 14 ये चेंज नहीं करने का है, तो 14π माइनस हाउ मच पाई इज 13π। बहुत प्रॉब्लम्स लिए है। नाउ ये दोनों एकदम सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, साइन π/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14 द होल स्क्वायर। तो इसके पहले का प्रॉब्लम भी ऐसा ही था, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, साइन ऑफ, आगे का एंगल कितना आना चाहिए, 90, तो इसका आधा लेना है। आधा कितना है, 7π। 7π माइनस हाउ मच पाई इज पाई, 6π, तो ऊपर कितना आएगा, 7π माइनस 6π अपॉन 14। यहाँ कितना आएगा, चेंज करना है तो ऊपर आएगा 7π माइनस कितना पाई, 3π, 4π। और ये कितना आएगा, साइन ऑफ 7π माइनस 2π अपॉन 14। चेंज करना है, चेंज करना है ढक्कन, तो दिस विल बिकम साइन ऑफ π/2 माइनस 6π/14, साइन ऑफ π/2 माइनस 4π/14, साइन ऑफ π/2 माइनस 2π/14 द होल स्क्वायर।
90 म्हणजे चेंज साइन विल चेंज टू कॉस. 6 पाय बाय 14 म्हणजे 3 पाय बाय 7. दिस विल बिकम 2 पाय बाय 7. दिस विल बिकम हाउ मच? पाई बाय 7. एंगल डबल हो रहा है? नहीं. पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, यहाँ चाहिए 4 पाई बाय 7. तो आप 3 पाई बाय 7 को लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाय 7. चलेगा ना भाई? देखना, एलसीएम ले तो कितना आ गया आपका? पाई मीन्स चेंज, नो चेंज, cos will remain cos. पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव. आ गया अभी आपको? डबल हो रहा है एंगल. जब भी एंगल डबल हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं? छोटा एंगल साइन पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. तो ये फॉर्मूला हम कितनी बार यूज करेंगे? हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? साइन पाई बाय 7. और ऊपर एक बार फॉर्मूला, दो बार फॉर्मूला, तीन बार फॉर्मूला, और एंगल डबल हो जाएगा 8 पाई बाय 7. तीन बार फॉर्मूला यूज किया है तो कितना आने वाला है? 2 क्यूब. तो अभी 8 पाई बाय 7 को अपन क्या लिखेंगे? 8 पाई बाय 7 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 7. पाई माइनस पाई बाय 7 मतलब क्या हो जाएगा? वो पाई बाय 7. तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका. ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? माइनस 1/8 द होल स्क्वायर. माइनस 1/8 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/64. झेपा क्या? ये दोनों कैंसिल होने वाला है. ये दोनों सेम 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 है. अगर आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला भी लिख के दिया था आपको. कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए डॉट 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 कॉस 2 रेस टू n माइनस 1 टाइम्स ए. ठीक है. एंगल डबल डबल होते जा रहा है तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? साइन 2 रेस टू n टाइम्स a अपॉन कितनी बार फॉर्मूला यूज किया है? n बार इंटू साइन a. सबसे छोटा वाला एंगल लेना है आपको, आंसर आ जाएगा. ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कॉस. Always try to convert in terms of cos. Now again, if A and B are in first quadrant, satisfying 3 sin square A plus 2 sin square B equal to 1 and 3 sin 2A minus 2 sin 2B is equal to 0, then angle A plus 2B is equal to how much? ठीक है. नाउ ये इक्वेशन से इसको मैं वो साइड लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा. करेक्ट है भाई? 3 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन 2b. तो आपका साइन 2b कितना हो जाएगा? 3/2 साइन 2a. ये मेरे को मिल गया. आपको फाइंड क्या करना है? a प्लस 2b. तो मैं फाइंड करता हूं कॉस ऑफ a प्लस 2b. What is cos of a plus 2b? It is cos cos sin sin with the opposite sign. It will be minus sin a sin 2b. Now cos a. How much is cos 2b? 3 sin square है. अबे ढक्कन यहाँ से सब्सटीट्यूट किया. माइनस साइन ए. हाउ मच इज साइन 2b? 3/2 साइन 2a. तो दिस विल बिकम 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू 3/2. हाउ मच इज साइन 2a? 2 साइन ए कॉस ए. 2 का हो गया. हैप्पी बर्थडे. दिस विल बिकम 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए. देखना साइन ए इंटू साइन ए कितना है? साइन स्क्वायर ए. मतलब कॉस ऑफ ए प्लस 2b, ये दोनों सेम सेम है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया मतलब 0. कॉस ऑफ
a plus 2b is 0, therefore a plus 2b is equal to pi by 2. a plus 2b is equal to pi by 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सब न्यू टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है जो नया टेक्स्ट बुक आया है अभी. इफ tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x, cot b minus cot a is equal to y, then cot of a minus b is equal to, ये उन्होंने पूछा है. ओके, कॉट बी को क्या लिख सकते हैं आप, 1/tan b माइनस 1/tan a, दिस इज इक्वल टू y. एलसीएम लिया, tan a tan b, इधर आ जाएगा tan a माइनस tan b, दिस इज इक्वल टू y. इसको ऊपर नीचे लिया तो हाउ मच विल बी tan a इंटू tan b, x अपॉन y. अबे दिया है ना, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू हाउ मच, x. आपको फाइंड क्या करना है, cot ऑफ a माइनस b, उसको आप लिख सकते हो 1/tan ऑफ a माइनस b. tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b. 1 प्लस tan a tan b ऊपर चला जाएगा, this will become 1 plus tan a tan b is x upon y, and tan a minus tan b is equal to how much, x. LCM लिया तो this will become y plus x upon xy, या इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं. इसको अगर हमने डायरेक्टली सेपरेट किया तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स. एक्स का हो गया हैप्पी बर्थडे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई. फॉर्मूला 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 याद रखिए प्लीज, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. In triangle PQR, angle R is equal to pi by 2 if tan P by 2 and tan Q by 2 are the roots of the quadratic equation, are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then what is the relation between a, b and c. ये दोनों ये इक्वेशन के क्या है, रूट है. व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको याद रहेगा तो माइनस बी अपॉन ए. एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सी अपॉन ए. देखना भाई सेम ही है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए. नाउ इन एनी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180. R उन्होंने दिया है 90, मतलब P प्लस Q इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, 90. आपको आधे वाले एंगल के वैल्यूज पता है तो डिवाइड बाय 2, P बाय 2 प्लस Q बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4. आपको tan के वैल्यूज पता है तो टेकिंग tan ऑन both the sides, this will become tan pi by 4. What is tan of a plus b, it will be tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a tan b. वैल्यूज दिया है इसका, tan 45 is 1. व्हाट इज tan p by 2 प्लस tan q by 2, माइनस b अपॉन a. ये कितना है, c अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 1. एलसीएम लिया, a कैंसल, माइनस b अपॉन a माइनस c इज इक्वल टू हाउ मच, 1. माइनस b इज इक्वल टू हाउ मच, a माइनस c, सो a प्लस b इज इक्वल टू c. a plus b is equal to c. टिंग टिंग टिटिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हम लोग ने 12th में भी किया था. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ tan pi cos theta, this is equal to cot pi sin theta, cot pi sin theta, then
साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मच? साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू उन्होंने पूछा है। ठीक है, नाउ tan ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। If tan A equal to tan B, then A is equal to B। और आपका फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 12 स्टैंडर्ड का, वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई पाई कैंसल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। आपको क्या पूछा है? साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस cos A sin B। What is the value of cos 45? 1 upon root 2। What is the value of sin 45? 1 upon root 2। 1 upon root 2 अगर हम लोग ने कॉमन ले लिया, आफ्टर टेकिंग 1 upon root 2 कॉमन, क्या बचेगा आपके पास? sin थीटा प्लस cos थीटा। और sin थीटा प्लस cos थीटा कितना है? हाफ। अबे ढक्कन, 1 upon root 2 कॉमन, sin थीटा प्लस cos थीटा। बट हाउ मच इज sin थीटा प्लस cos थीटा? हाफ। तो यह आपका आंसर विल बी हाउ मच? 1 upon 2 root 2। चिंदी प्रॉब्लम, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इफ माइनस पाई बाय 2 is less than theta is less than pi by 2, then द वैल्यू ऑफ, ये तो 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर इसको हम क्या करते हैं? रैशनलाइज। रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। रूट निकालने के लिए हमेशा आपको डालना पड़ता है मॉड्यूलस साइन, ये याद रखिए प्लीज, ये आपको नहीं था 10 स्टैंडर्ड में। ठीक है, नाउ साइन का वैल्यू किसके बीच में रहता है? -1 टू +1। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, ये 1 ऐड किया तो ये आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? 2। तो ऊपर का तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अभी इसके लिए आपको क्या दिया है? थीटा इज बिटवीन -90 टू +90। अबे ढक्कन, ये है आपका पाई बाय 2 और ये है आपका माइनस पाई बाय 2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos is what? Positive, therefore cos theta is what? पॉजिटिव। सी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए हमेशा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। वापिस बड़बड़ करता हूं, मैंने क्या बोला है अभी देखिए। इंस्टेड ऑफ दिस -π/2 टू π/2, अगर उन्होंने दिया है थीटा वॉज बिटवीन π/2 टू 3π/2, सपोज अगर उन्होंने दिया रहता थीटा इज बिटवीन व्हाट? π/2 टू 3π/2, इसका मीनिंग थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या रहता है? नेगेटिव। तो इसकी जो अंदर वाले की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। लेकिन मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा। मॉड का अगर आपको याद रहेगा तो इन दैट केस इफ थीटा इज इन आइदर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, देन दिस का वैल्यू विल बी व्हाट? माइनस कॉस थीटा। क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा माइनस
tan theta if theta is either in second quadrant or third quadrant. But in this problem it is given what theta is where? Theta is in which quadrant? Theta is in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा फेवरेट है, प्लीज आंसर ध्यान में रखिए. द इक्वेशन sec square theta, this is equal to 4xy upon x plus y the whole square is possible for real values of x and y for, okay, is possible for real values of x and y is, कौन से values of x and y के लिए possible है? Now square of any number will be always greater than or equal to 0, correct? Square of any number is always greater than or equal to 0. लेकिन 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 याद रखिए sec थीटा का रेंज क्या रहता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और sec थीटा इज व्हाट? लेस देन और इक्वल टू -1. वो 1 से बड़ा रहता है या -1 से छोटा रहता है? तो स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर थीटा आपका हमेशा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. झेपा क्या? सेक का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1. कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस इज बिटवीन -1 to +1. What is sec square theta? Sec square theta is given to be 4xy upon x plus y the whole square greater than or equal to 1. 4xy greater than or equal to x plus y the whole square. 4xy greater than or equal to x square plus 2xy plus y square. इसको उधर ले लीजिए. 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर. मतलब x माइनस वाई द होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, बट x माइनस वाई द होल स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन 0 because it is always what? Positive या 0. तो x minus y the whole square will be what? Equal to 0. Therefore x and y are equal, और x should not be equal to 0 and y should not be equal to 0. क्योंकि अगर x y 0 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई लेकिन sec की वैल्यू किसके बीच में रहती है? 1 से बड़ी और -1 से छोटी. इट इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. सेक का अगर आपको ग्राफ मालूम है तो वो कॉस के उल्टा रहता है. कॉस जब भी ऐसा चलता है, ये 1 है, तो सेक किधर चलता है? ऊपर चलता है, याद रखिए. तो सेक का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1. 0 कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये x और y विल नेवर बी इक्वल टू 0. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ध्यान में रखिए. x इज इक्वल टू y एंड x एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0. चलो, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट सेशन में लास्ट सेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का और प्रॉब्लम्स करेंगे. प्लीज आप फॉर्मूले अच्छी तरह से करके जाइए. लास्ट सेशन, नेक्स्ट session will be the last session on trigonometric functions. Thank you very much. Bye bye.